Some big news coming in. Massive search operations underway in Lucknow after Al-Qaeda terror busts houses of all those suspects. Shahid and Shiraz being searched. Shahid was in Saudi Arabia for 5 years. It is believed that he was in touch with Al-Qaeda and Pakistani handlers using Telegram messaging app. Here's some big information coming in as we speak. We're looking at a massive crackdown. Search operations underway in Lucknow after Al-Qaeda terror bust. Houses of suspects, including Shahid and Shiraz, is being searched even as we speak. Shahid was in Saudi Arabia. The information that we get initially now says that he was living in Saudi for about 5 years. It's believed that he was in touch with Al-Qaeda and Pakistani handlers using the Telegram messaging app. Massive ATS search operations underway in Lucknow even as we speak. Here we're looking at Lucknow terror bust even as we speak. Operations currently underway as ATS is on the hunt for many of those who are still on the run. In fact, Shahid and Shiraz have been arrested. They're being interrogated, and first information tells us that this is an Al-Qaeda terror plot that was busted. In fact, the houses of these two are currently being searched, and initial investigation suggests that Shahid was in Saudi Arabia for 5 years now. What he was doing, what exactly was his connection, or how was he exactly connected with those terrorists along the Pakistan-Afghanistan border, that needs to be established for now. It appears it's an Al-Qaeda terror plot that's been foiled by the ATS, who cracked down, arrested these two. A few more are currently on the run. This person, Shahid, has been living in Saudi Arabia for 5 years. He came back to India, of course, has been living in Lucknow for a while. Now, we understand that these two were in touch with Al-Qaeda and Pakistani handlers using the messaging app Telegram. And while both of their houses are being searched, there are a few who are still on the run. They've fled from the spot. We believe that some pressure cooker explosives, also some ammunition that was found in the spot, the search site. We're looking at explosive material that's been recovered from the Lucknow hideout. In fact, the UP ATS says that this plot was to come out with serial blasts in UP. That's the precise information that the ATS has got, giving us some first information on ground. What they found is that the explosives were meant for serial blasts in Uttar Pradesh. Now, more information on that is yet to be recovered, but for now, dog squad there at the spot along with the ATS who are thoroughly searching those areas. They're finding some stash of explosives is what the information that we get here. And all alert has been sounded at railway stations, airports and bus stops across Lucknow. Even as we speak, while the ATS carries out searches, there are a few who have already fled from the spot. 5 of the 7 suspects have managed to flee. The hunt is on to nab the rest of them. Remember, 2 of them have been arrested, Shahid and Shiraz. Both of them are currently in police custody. They are being interrogated. Information tells us that Shahid was living in Saudi Arabia for 5 years, and he was in contact with Pakistani handlers, Pakistani and Afghanistani handlers for some time now. How long were they in touch with these terror groups? How exactly did they establish contact with them? What exactly is the plan? All that is currently being investigated, but we're looking as we speak, ATS conducting searches, investigations on, searches on at those houses where the accused have been residing for years now. Samad joining us for more details on that, joining us live. Samad, do take us through the ATS's searches, what they found. Out of the 7, 2 of them have been arrested, 5 of them have fled from the spot. Were all the 7 living in the same house? Were they different places that they were actually functioning from? What details do we know with regards to their intentions? We hear suggestions from the ATS sources telling us that this was a bid for an attempt to carry out some series of blasts in Uttar Pradesh. Is that true?
Well, exactly. IG ATS GK Goswami, while speaking to India Today, clearly said that it was the major plot for the serial blast in Uttar Pradesh and its capital, Lucknow. They were targeting areas where much population visits, and that's why they wanted to exert some much loss. And the days they were planning were tomorrow or today. That is why the operation and raid was so important. What you can see from this spot where I am currently here in, this is the spot where the raid is still on. As you can see, the three houses out here where UP ATS along with the help of Uttar Pradesh police conducted raids. Though the two Al-Qaeda suspects have been taken away from this particular spot, but still the family members of the Al-Qaeda suspects are being interrogated by the Uttar Pradesh police, and Uttar Pradesh ATS commandos were also swung into action in this entire thing. As we see, 4 to 5 big black boxes with recoveries of the raids, including explosives in big numbers, including pressure cooker, and the things used to make explosives. Cutting across the UP, DGP Prashant addressing a presser there with regards to this case. देखो भाई कितना टाइम लगेगा प्रेस इतना स्वामी जी पहले आप ब्रीफ कर दीजिए आपके नेतृत्व में चला पूरा ऑपरेशन करने के लिए वाईफाई की सुविधा भी आप लोग कर दीजिए ठीक है भाई देखो यहाँ कोई जियो वाले तो वैसे भी लगा देते हैं शुरू करें तब तक चीजें आ जाएंगी अभी डलवाते हैं आज ATS उत्तर प्रदेश ने एक बहुत ही बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। ATS के पूरी टीम को, जिसका नेतृत्व IG ATS कर रहे हैं, वो बधाई के पात्र हैं। और ATS की हमारी टीम ने अल-कायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से असलहे तथा विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। ये यहाँ इसका बैकग्राउंड थोड़ा मैं बता दूं कि अल-कायदा एक मिलिटेंट सुन्नी इस्लामिक मल्टीनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका गठन 1988 में सोवियत अफ़गान वार के समय ओसामा बिन लादेन, अब्दुल्ला अजीज़ तथा कुछ अन्य अरब वॉलंटियर्स ने किया था तथा इसका इंडियन सबकॉन्टिनेंट मॉड्यूल वर्ष 2014 में 3 सितंबर को तत्कालीन अल-कायदा चीफ अल-जवाहिरी के द्वारा अनाउंस किया गया था। उस समय इसका चीफ मौलाना असीम उमर थे और ये
व्यक्ति संभल उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ था। यूएस अफगान ऑपरेशन में 23 सितंबर 2019 को यह मारा गया था। उसके बाद से इस अलकायदा का उत्तर प्रदेश मॉड्यूल उमर हलमंडी नाम के व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था। अभी आपको प्रेस रिलीज देंगे। उमर हलमंडी, और ये गतिविधियां पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर क्षेत्र में पेशावर क्वेटा एरिया जो पाकिस्तान का है, वहाँ से आतंकवादी गतिविधि संचालित की जा रही है। उक्त कार्य के लिए उमर हलमंडी द्वारा भारत में अल कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल के संगठन में सदस्यों की भर्ती तथा उन्हें रेडिकलाइज करने का कार्य किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत उमर हलमंडी ने कुछ जिहादी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को लखनऊ में चिन्हित कर एवं उन्हें नियुक्त कर अल कायदा का मॉड्यूल को खड़ा किया गया है। यह मॉड्यूल अंसार गजवातुल हिंद, जो कि अल कायदा का ही एक अंग है, के अंतर्गत आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया है। इस मॉड्यूल के जो प्रमुख सदस्य हैं, उनका नाम है मिन्हाज, मसीरुद्दीन व शकील। इनके नाम प्रकाश में आए हैं। इन लोगों ने उमर हलमंडी के निर्देश पर तथा अपने अन्य साथियों के सहायता से 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। इसके लिए इनके द्वारा शस्त्र एवं विस्फोटक आदि भी एकत्रित किया गया था। ये सभी सूचनाएं हम लोगों ने, जो प्रारंभिक सूचनाएं मिली थी, उसको डेवलप किया है। फिर उपरोक्त घटना को अंजाम देने के लिए तथा योजना बनाने में मिन्हाज अहमद पुत्र सिराज अहमद, निवासी रिंग रोड, बगारिया, जेहटा बरावन कला, दुबग्गा, थाना काकोरी, तथा मसीरुद्दीन पुत्र अमीनुद्दीन, निवासी सीतापुर रोड, मोहिबुल्लापुर, लखनऊ, थाना मड़ियाहूँ, मुख्य भूमिका निभा रहे थे। इस गिरोह में लखनऊ तथा कानपुर के इनके अन्य साथी भी शामिल हैं। इनके द्वारा उत्तर प्रदेश के तथा मुख्यतः लखनऊ में कभी भी आतंकवादी घटनाएं की जा सकती हैं, इसकी सूचना थी। इस सूचना पे जो हमारी एटीएस की टीम को लगाया गया था, और उन्हीं में से एक टीम ने आज आतंकी अभियुक्त मिन्हाज अहमद, जिसकी उम्र लगभग 30-32 वर्ष है, के दुबग्गा थाना काकोरी अंतर्गत जो निवास है, वहाँ पर दबिश दी गई तथा अभियुक्त मिन्हाज घर पे मिला और उसके घर से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ तथा जमा तलाशी में एक अदद पिस्टल बरामद हुई है, जिसका विस्तृत फर्द या विवरण, फर्द पुलिस के लैंग्वेज में है, उसकी विवरण तैयार किया जा रहा है।
घर से बरामद आईडी को बीडीडीएस टीम के द्वारा निष्क्रिय कराया जा रहा है। दूसरी टीम के द्वारा अभियुक्त मसीरुद्दीन उम्र लगभग 50 साल, मसीरुद्दीन उम्र लगभग 50 साल को उसके सीतापुर रोड निवास मड़ियाहू थाने से दबिश के दौरान गिरफ्तार किया गया है और इसके पास से भी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है और इसके पास से एक कुकर भी बरामद हुआ है। अन्य टीमों के द्वारा इन आतंकवादियों के अन्य सहयोगियों के तलाश के लिए विभिन्न स्थानों पर दबिश दी जा रही है। पूछताछ के दौरान हिरासत में लिए गए अभियुक्तों द्वारा अपने सहयोगियों के घर से भाग जाने की बात बताई गई है, जिसके क्रम में एटीएस की टीम द्वारा स्थानीय पुलिस से सहयोग लेकर सघन चेकिंग कराई जा रही है। इस प्रकरण में एटीएस थाने पे अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है तथा इन दोनों व्यक्तियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा पुलिस कस्टडी रिमांड लेके इनके तथा इनके अन्य साथियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। प्रेशर कुकर, आईडी एवं अवैध असलाहों को उपलब्ध कराने वाले अन्य व्यक्तियों के बारे में भी पूछताछ कर फिर आगे की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्तों का जो मुख्य दोनों अभियुक्त हैं मैंने पहले भी बताया है, उनका नाम मिनाज अहमद पुत्र सिराज अहमद निवासी रिंग रोड बगारिया जहटा बरावन कला दुबग्गा थाना काकोरी लखनऊ तथा दूसरा व्यक्ति है मसीरुद्दीन उर्फ मुशीर पुत्र अमीनुद्दीन निवासी सीतापुर रोड मोहिबुल्लापुर लखनऊ थाना मड़ियाहू। ये प्रेस नोट आपको दे दिया गया है और इसके फोटोग्राफ भी मैं अभी ग्रुप में तत्काल इसके बाद से डाल दूंगा। और कितने लोग हैं इसमें? इसके बारे में तो मैंने उसमें लिखा है कि इसके अन्य साथी भी हैं और पूछताछ चल रही है। जो चीज़ें मिली हैं वो बताया गया है और अन्य जो चीज़ें मिलेंगी आपको समय से बताया जाएगा और आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इस संबंध में किसी भी व्यक्ति को गाइडलाइन भी हैं कि वहाँ लाइव टेलीकास्ट नहीं करना है जहाँ ऑपरेशन चल रहा है। और जैसे ही सूचना हमारे पास अभी तक की मिली है, हमने उसी समय बताया था कि 5 बजे हम ब्रीफिंग करेंगे। इसके बाद का जो भी डेवलपमेंट होगा, हम अगर आवश्यक होगा तो फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के आप सभी को अवगत कराएंगे और विवेचना की महत्ता को देखते हुए और नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए आप सबसे भी उम्मीद है कि आप इस पे कोई कंजेक्चरल चीज़ें ना करें। जो फैक्चुअल चीज़ें हैं हम सब आपके साथ शेयर करेंगे। ये हमारे पास सोर्स को डिस्क्लोज करने के लिए कोर्ट भी हमें बाध्य नहीं करता, इसलिए जो भी सोर्स इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी उस पर हमारे एसटीएफ ने एटीएस ने इसको पूरी तरीके से डेवलप किया है और हमारी टीम ने इसमें सफलता पाई। अभी तो 15 अगस्त जो चीज़ें इतनी जल्दी पूछताछ पे आई हैं, हो सकता है कि उसके पहले भी कोई घटना हो जाती। ऐसा जो आतंकवादी लोग रहते हैं वो मौके की तलाश में रहते हैं
और जैसे ही जितनी हो सकता था कि 2-4 दिन में भी करते, 15 अगस्त तक भी कर सकते थे। पहले जो आतंकी घटना हुई थी जिसमें आरोपी पकड़े गए थे कई साल पहले, वो भी उसी बेल्ट में था, तो क्या वो इलाका भी सॉफ्ट टारगेट है कश्मीर दुपट्टा? नहीं, अभी तो 2 डिफरेंट एरिया से लोग मिले हैं और वो दूसरा संगठन था, ये दूसरा मॉड्यूल है। मॉड्यूल के बारे में बैकग्राउंड भी मैंने आपको पूरी तरीके से बताया है और इसके तहत ही हम लोग कार्य कर रहे हैं और आगे जैसे ही इसमें कोई और मेजर ब्रेक थ्रू होगा हम आपके साथ सभी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। जी नहीं, मैंने लिखा है कि लखनऊ और अन्य शहरों में सभी जगह हैं, ऐसी चीज़ तो मैंने कोई बोला नहीं है। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि इस पे कंजेक्चर ना करें, जो चीज़ें हैं हम आपको बताएंगे, कोई चीज़ इसमें छुपाने की अन्य। मैंने ये सब कुछ लिखा है कि हम अन्य जगहों पे भी दबिश चल रही है। जी नहीं, मैंने बताया कि इसके अलावा विस्फोटक मिला है, वेपन मिले हैं। जी हाँ, पिस्टल मिली है। कायदा के अलावा भी किसी और से संबंध निकले हैं या सिर्फ अलकायदा समझते? अभी जितनी जल्दी और जितनी तेज़ी से, ऑपरेशन से ज़्यादा तेज़ी से हम आपके सामने चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्रेस में अचानक चलने लगी और हम लोगों को भी कुछ चीज़ें संकलित करने के बाद से ही बताना था, तो जितनी सूचनाएं एकत्रित हो सकी हैं हम बता रहे हैं और इसके बाद से अगर कोई ऐसी बात होगी तो हम आपको ज़रूर अवगत कराएंगे। आप इसके अलावा कुछ बताएंगे? ये बताना आवश्यक नहीं, मैंने बताया कि सभी जगह हमारी साइमल्टेनियस हम टीमें भेजें। आप जो प्रेस विज्ञप्ति दी गई इसको पढ़ें, इसमें सब कुछ लिखा है। क्या अभी मैंने बताया कि टीम जैसे आई है, अभी फर्द बनी नहीं है, फर्द बन रही है, फिर भी चूँकि आप लोगों के लिए देरी हो रही थी, आपको प्रिंट मीडिया में भी हैं और आपके जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सभी लोग पूछ रहे थे लगातार और बहुत बार हम लोग फ़ोन उठा भी नहीं रहे थे कि किसको कहें, किसको मना करें, क्या बताएं। और जब कोई ऑपरेशन चलता है तो ऑपरेशनल कमांडर से आप मिनट पे डेवलपमेंट नहीं पूछ सकते। एनआईए वगैरह को भी अब लूप में आप ले रहे हैं पूरे मामले? किसको? एनआईए जैसे अभी एफआईआर दर्ज होगी, उसके बाद से आगे की कार्रवाई होगी। एफआईआर तो भी अभी उसकी प्रक्रिया चल रही है। ये अभी इस बारे में जब इससे पूछताछ की गई थी, वैसे इसमें कई लोगों के बारे में जानकारी आई थी, लेकिन जब इनसे पूछताछ हुई तो इसने ये बताया है कि 2 लोग थोड़ी देर पहले किसी काम से गए थे। हालांकि अभी ये कितना सही वो बोल रहा है अभी और उससे पूछताछ की जाएगी, तो उसी के संदर्भ में फिर कॉर्डन करके और पुलिस, लोकल पुलिस को लिया गया और एटीएस और कमांडो की टीम ने वहाँ सर्च की। सर, वहाँ लोकल जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि ये लोग 10 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और इस तरह की कोई। देखिए, वो लोकल लोग जो भी बता रहे हैं वो आपसे बता रहे होंगे, जो विवेचना से संबंधित और ऑपरेशन से संबंधित चीज़ें हैं वो हम लोग आपसे शेयर कर रहे हैं और उस संबंध में लोग क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, इसके बारे में हम लोगों का कुछ भी बताना उचित नहीं है। हाँ? अभी तक तो कुछ नहीं है। 4-5 घंटे 6 घंटे में तो कुछ इतना पता नहीं चलता। थैंक यू। चलिए, धन्यवाद। All right, let me quickly cut across to Samarth Srivastava joining us live from Lucknow. Samarth, right over to you. Can you decode for us exactly what was said by the ADG? In fact, we heard that he mentioned a terror plot was on to carry out series of blasts ahead of August 15th.
Firstly, I want to tell you the names, Minhas and Masiruddin. These are the two names which have come to light by the ADG Law and Order Prashant Kumar, that these are the Al-Qaeda suspects which are being taken into the custody of Uttar Pradesh ATS and police as well. And this was the this was not the one day thing, it was a nexus from Al-Qaeda as they were taking some persons from Lucknow in UP who were interested in Al-Qaeda activities, and under which thing these two were found, and also some of their associates are fleeing from Lucknow, and efforts are on to nab them. Also, I want to tell you that the efforts are on to deactivate the bomb recovered from the site, and also recoveries like pressure cooker bombs and other pistol, as said by the ADG, recovered from the spot. They were planning something very big, as 15 August is nearby, and that's why, seeing Independence Day, they were targeting that they want to do some serial blasts during Independence Day. And also, if you see the districts Lucknow and some Mathura, Ayodhya, these were the districts in target of these suspects of Al-Qaeda, as they wanted to harm much population. They were looking for the areas where much mob collects, be it during some religious event or during Independence Day. So these are the things coming out, though, as ADG said, that there are many 6 to 7 persons who are still out of radar. That's most important, that the other 5 who are currently absconding be arrested at the earliest. We heard what the ADG said. Currently